Welcome students. We are studying the refraction of the light, and you have seen that when light starts from medium 1, it's a transparent medium, and goes in another medium which is also a transparent medium, it bends either this way or that way. This is the normal. So we have seen that from the Snell's law, the refractive index as n to 1 is equal to sin I upon sin r, and also it is the speed of light in medium 1. This is the medium 1 upon speed of light in medium 2. If this can be written as the two formulas give the same thing. हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं यहाँ पर. Okay. So the speed of light, if it is air, if you have air and either any medium, so in this case V1 can be taken as C if medium 1 is air, and simply V2 can be taken as V if medium 2 is any medium. कौन medium हो सकता है? Glass, water, any medium it could be there. So now this formula can be written as, this could be written as medium with respect to air C upon V. Okay, this is the formula, and we have very small numericals on these formulas. Question number 1. If angle I is equal to say 45 degree, angle R is equal to 30 degree, then what is the refractive index here? So we can write n to 1 as sin 45 upon sin 30. Sin 45, you know that it is 1 upon root 2, it is 1 upon 2, so you will have n to 1 is equal to 2 upon root 2, that is root 2, it can be taken as 1.414. This is the refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1. Remember, if air is there, for air refractive index is always taken as 1. हम एयर के लिए इसको हमेशा 1 लेंगे, और बाकी जो भी हमारे मीडियम्स हैं वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यहाँ पर ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है. स्मॉल न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल, बट आपको मिल सकता है कभी भी कहीं पर भी. एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट विल द स्पीड ऑफ द लाइट से इन द मीडियम. सपोज दिस मीडियम इज द ग्लास मीडियम. This is the glass. Then you will have refractive index of the glass with respect to air as 3/2. ये आपको given है. And we know that speed of light in air और vacuum कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 meter per second. The question is that ये यहाँ पर air में स्पीड है तो ग्लास में स्पीड कितनी होगी? यहाँ मुझे चाहिए. Then we can say Nga is equal to C upon V. V could be C upon Nga. या सिंपली N भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम. ये हमको 3/2 गिवन है, and C is here 3 into 10 to the power 8. 3/2.
3 into 10 to the power 8 into 2 upon 3. Cancel out. This is the speed of the light in glass. ये glass हमने. So you see when light enters from rarer to denser medium. अब ये यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ rarer, और इसको बोल रहा हूँ denser. तो when light enters from rarer to denser medium, इसकी स्पीड डिक्रीज कर देगी. यहाँ जो भी स्पीड हो उससे कम स्पीड हमको यहाँ पर मिलेगी. कैसे पहचानते हैं? अगर ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ को बेंड कर रही है, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है. और इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं हम लोग ऑप्टिकली डेंसर. ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर. सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2. हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मालूम थी ये, और ये हमने इसको फाइंड कर लिया. सिंगल न्यूमेरिकल, ये भी छोटा सा न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है करने के लिए. तो हमने देखा यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2. जब भी हम n लिखते हैं यहां पर, तो ये n क्या है? एक कंपैरिजन है. ये क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो क्या मीडियम 1 और 2 का अपना भी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? यस. अगर मैं सिंपली n1 लिखता हूं तो कह सकते हैं n1 and n2. लेट n1 and n2 आर एब्सोल्यूट refractive indices of medium 1 and medium 2. दोनों की अपनी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं. तो अगर मैं यहां पर इसको लिखना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं. अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा n1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मीडियम 1 में हम स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिख सकते हैं? तो n1 कुड बी रिटन एज c अपॉन v1, n2 कुड बी रिटन एज c अपॉन v2. तो यहां से v1 क्या हो जाएगा? c अपॉन n1. यहां से v2 क्या हो जाएगा? c अपॉन v2. अगर हम यहाँ पे इसको पुटअप कर दें n21 को, तो v1 हमारा क्या है? c अपॉन n1. ये क्या है? c अपॉन n2. तो c कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया n2 अपॉन n1. अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है n2 अपॉन n1. अब ये तीसरा फॉर्मूला आ गया. अब हमको ये 3 फॉर्मूलों को यहाँ पर देखिए कंपेयर करना है. यहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे? मैंने n21 को लिखा साइन आई अपॉन साइन आर, v1 अपॉन v2 और n2 अपॉन n1. ऐसे भी लिख सकते हैं. अब मैं कुछ और भी लिखना चाहता हूं. वी विल हैव एनी अदर वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है जो ये बताती है कि यहां देखिए n1 जो है वो क्या है? मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और n2 क्या था? मीडियम 2 का. n2 यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n1 यहां पर इसका है. I क्या है? मीडियम 1 में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये r क्या है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 1 एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द सेम मीडियम, इसका प्रोडक्ट. और इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में, ये प्रोडक्ट सेम है.
तो हम इसको कह सकते हैं n इंटू साइन आर इज ए कॉन्स्टेंट। ये बहुत ही वैल्यूएबल एक रिलेशनशिप है, हम कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी मीडियम में हो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए और वहां पर रे ऑफ लाइट जो भी एंगल बना रही है उसको लिख लीजिए, तो हम उसको किसी भी दूसरे मीडियम के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा और आगे चलकर इसको हम देखेंगे कैसे ये यूज होगा और कहाँ हमारी हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो कैसे होगा अगर हमारे पास में एक थिक ग्लास स्लैब है। तो आई वॉन्ट टू सी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक मेरे पास में थिक ग्लास स्लैब है, मैं वहां पे रिफ्रैक्शन देखना चाहता हूँ। ग्लास स्लैब आपके पास में कैसे हो सकती है? ये आपके पास में ग्लास स्लैब है, आप इसमें रिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं, ये कैसा इसमें रिफ्रैक्शन आएगा? ग्लास। लेकिन जब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पर तो इसको सिंपली 2D में से प्लॉट करेंगे हम, ये प्लॉटिंग करेंगे हम इसकी। यहाँ पर इस प्लॉटिंग में हम देखेंगे कि रे ऑफ लाइट किस तरह से हमें मिलने वाली है। सो व्हाट वी डू, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एमिटेड रे, ये एमर्जेंट रे। इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इधर से गई, ये गई, और इमर्जेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के बाद में ये क्या है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। देखिए यहां सपोज करिए एयर है मेरे पास में और मैंने इसको लिया है ग्लास और फिर यहां पे एयर आ गई, तो लाइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर moving into the glass, then again it is coming out from the glass। तो ये हम इसको बोलेंगे ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल यहां ड्रॉ किया है एंड दिस इज इमर्जेंट जो फाइनली वापस एयर में चली गई है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 और इसको हमने कह दिया यहां पर सपोज इसको हमने बोला R1, इसको हमने क्या कह दिया इस मीडियम के लिए R2 और ये एंगल यहां से ये जो बाहर लाइट बाहर निकल रही है इसको हमने कह दिया R3। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द मीडियम 1, एंगल ऑफ R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में, R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से लाइट दूसरी मीडियम में जा रही है और R3 क्या है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहां पर ये लाइट जब निकल रही है। अब देखिए यहां पर ये रे ऑफ लाइट का पाथ ये होना चाहिए था एक्चुअली, रे ऑफ लाइट का पाथ ये होना चाहिए। ये हमारे पास में क्या थी E F G H, उसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको मैंने कह दिया M। तो रेज हम समझ गए, EF हमारे पास में थी इंसिडेंट रे, FG रे रिफ्रैक्टेड रे, GH रे इमर्जेंट रे और यहां पर जो है अब ये GM क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस रे के लिए बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली पार्ट तो इसका ये होना चाहिए था अगर ग्लास ना होता, लेकिन अब ये कैसे ऐसे दिखाई दे रही है
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। जो दोनों पैरेलल होती हैं, तो कहने का मतलब है जो GH है इट इज पैरेलल टू EF। ये EF, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 ले लेते हैं, इसको N2 ले लेते हैं, इसको N3 ले लेते हैं। तो अगर इसको हम प्रूव करना चाहते हैं तो सिंपली करना क्या है आपको, अभी मैंने आपको बताया था n इंटू साइन आर जो है हमारा वो कांस्टेंट है, तो n इंटू साइन थीटा जो भी कर लीजिए। तो यहां पर इसके लिए क्या है n1 साइन I1, इसके लिए क्या है n2 साइन R1। अब n1 की वैल्यू क्या हमारे लिए हमेशा होती है, मैंने बताया था एयर के लिए ये जो हमेशा 1 होता है, तो n1 इज 1 फॉर एयर, ये एयर होता है। देयरफॉर साइन I1 इक्वल टू n2 साइन R1, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से यहां पर देखिए, इस मीडियम में देखिए, यहां पर हम क्या लिखेंगे, n2 साइन R2 इक्वल टू n3 एंड साइन R3। अब अगेन जो n3 है हमारा वहां एयर है, तो क्या हो जाएगा, n2 साइन R2 इक्वल टू n1 1 हो गया, और ये हो गया साइन R3। वन मोर थिंग, ये R1 और R2 ये दोनों हमारे नॉर्मल्स हैं, तो R1 R2 हमारे क्या दोनों पैरेलल हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं n1 साइन R1 साइन R3 बिकॉज R2 इज इक्वल टू R1। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें, यहाँ के लिखा हुआ n2 साइन R1, यहाँ के लिखा हुआ n2 साइन R1, तो इसका मतलब है साइन I, इसको और थोड़ा ठीक कर लेते हैं, साइन R3 बिकम्स n2 साइन R1। 2 मैं इसको कर लेता हूं यहाँ पर, तो ये दोनों हमारी इक्वेशंस इक्वल हो गई। मैं अब इसको लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से, इसको वो कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन I1 इक्वल टू साइन R3, हेंस I1 इक्वल टू R3, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे बात करेंगे हम लोग।